Hello everyone, welcome to Jeev Vigyan. In this video, we will study some of the important questions for your board exams from the chapter Principles of Inheritance that come under unit Genetics. This unit consists of 18 marks of portion in your exams and is very important for plus 2 grade students. So in this video, I will cover up some of the very short question answers. It means like 1 mark क्वेश्चन आंसर्स एंड सम ऑफ द कंसेप्चुअल बेस, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे विद द क्वेश्चंस. So let us start the video with the first question, that is the process of transfer of hereditary characters from one generation to another is known as. The answer is genetics. Means वो process जिस where there is transfer of hereditary characters, कि जो characters हैं वो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. You must know the answer. The answer is Gregor John Mendel. He is the father of genetics. Question number 3 is the term genetics was coined by Johansen. So देखो बेटा, इधर प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना. Just because Gregor John Mendel is known as the father of genetics, that does not mean कि उसी ने ये term जो है वो coin की है. Genetics term was coined by Johansen. Gregor John Mendel is known as the father of genetics because of his path-breaking experiments in this field. Next question is, who coined the term mutation? Mutation is the sudden change in the gene of an organism, and this term was coined by Hugo de Vries. Now we are up to question number 5. Which term of genetics represents the potential ability of a plant cell to grow into complete plant? Means genetics में वो ऐसी कौन सी term है या फिर वो कौन सी process है जो कि represent करती है किसी भी plant cell की ability को to grow into a complete plant, and that term is pluripotency. Pluripotency is the term that is given to the potential ability or the ability of a cell to grow into complete plant. A sudden change in the gene which is heritable from one generation to other is known as, अभी हमने पढ़ा, that is known as mutation. So these are some of the 1 mark questions. ये आपको MCQ types में भी आ सकते हैं and are very important. Now we will come up to the subjective questions, जिनकी हेल्प से आपके जो concepts हैं वो भी clear हो जाएंगे. So question number 1, give any 2 reasons for the selection of pea plants by Mendel for his experiment. आपको कोई भी ऐसे 2 reason देने हैं जो कि ये बता सके कि मेंडल ने सिर्फ pea plant को ही क्यों चूज किया, या फिर कौन से ऐसे रीजंस थे कि मेंडल ने pea plant को चूज किया. So the answer is pea plant can easily be cross pollinated as well as self pollinated. pea plants जो हैं वो cross pollinate भी किए जा सकते हैं, self pollinate भी किए जा सकते हैं very easily. क्रॉस पॉलिनेशन जो है थोड़ी आर्टिफिशियल तरीके से उसकी की जा सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन तो वो खुद ही हो जाती है. Next point is many varieties of pea plants are with contrasting forms of characters. Means pea plants की काफ़ी सारी ऐसी varieties हैं जिनमें कि आपको contrasting forms मिलेंगे characters के. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ साइकिल है, एक ही साल में आप 2-3 जो इसकी प्रोजेनी है वो ग्रो करवा सकते हो, एंड इट प्रोड्यूसेस मैनी ऑफस्प्रिंग इन वन क्रॉस. एक ही क्रॉस में ये काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द अलील्स ऑफ जीन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जीन में जो अलील्स होती हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होती है, हाउ दे आर डिफरेंट. सो अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग हाइट को लें, हाइट एज अ कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट. सो हाइट में क्या है, हमें 2 वेरिएशंस मिलेंगी, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ. इफ वी रिप्रेजेंट टॉल विद कैपिटल T एंड ड्वार्फ विद स्मॉल t, ओके, सो these are the 2 different alleles of a gene. ये 2 different alleles हैं एक ही जीन की, which are some can be of or can represent the same character or can represent different character. So these are the alternative form of the gene.
Question number 3 is, why does an individual have only 2 alleles even if a character shows multiple allelism? So first of all तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है कि किसी भी जीन का 2 से ज़्यादा अलील्स जो है प्रेजेंट होना, किसी भी जीन्स की 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट होना. सो मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन अलील दैट अकर ऑन द सेम जीन लोकस आर नोन एज मल्टीपल अलील. सेम जीन लोकस का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम पे एक ही लोकेशन पे उस जीन की काफ़ी सारी मीन्स 2 से ज़्यादा अलील्स का प्रेजेंट होना, दैट इज मल्टीपल अलील्स. लेकिन एक इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ 2 अलील्स ही प्रेजेंट रहती है. वो क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट से पहले व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज दे आर हैप्लॉइड. जब स्पर्म और एग फ्यूज नहीं हुए होते हैं दे आर हैप्लॉइड. उनके फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है विच बिकम्स डिप्लॉइड. तो स्पर्म और एग में एक एक अलील हर एक कैरेक्टर की प्रेजेंट रहती है, हर एक ट्रेट की प्रेजेंट रहती है. और जब स्पर्म और एग फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं तो एक अलील आती है स्पर्म से, एक अलील आती है एग से इन द जाइगोट, एंड देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 अलील्स फॉर ईच ट्रेट और वी कैन से फॉर ईच कैरेक्टर. Question number 4 is define linkage. So linkage is the tendency of a gene to remain combined together. Means एक क्रोमोसोम पे डिफरेंट जीन्स की एक दूसरे के साथ लिंकेज होना, लिंक होना उनका, ठीक है, उस टेंडेंसी को हम लिंकेज बोलते हैं. एंड देन दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट विलियम बेटसन एंड R.C. Punnett in early 1900s. Now coming up to question number 5, name any one plant that shows the phenomena of incomplete dominance. Very important question, and the answer is dog flower. In general language we'll call it snapdragon also, and scientifically we call it antirrhinum. And I will just show you the image. Here it is. Here you can see how dog flower looks like. आपने भी ये देखा ही होगा कभी ना कभी. तो dog flower में बहुत easily incomplete dominance जो है वो देखी जा सकती है. Question number 6 is, a hemophilic man marries a normal homozygous woman. What is the probability that their daughter will be hemophilic? Hemophilia is a X-linked recessive disorder. Means इसके जो जीन्स होंगे वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे and they are recessive. So अगर कोई हीमोफिलिक मैन नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन के साथ मैरिज अपनी करता है तो उसकी डॉटर में वो हीमोफीलिया की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एंड द आंसर इज 0%. एंड व्हाई इज दैट सो? सपोज here I can show you through a simple diagram that here you can see that the man is affected. Why the man is affected from hemophilia? Because he has only one X chromosome और वही X chromosome पे उसके जो हीमोफीलिया के जीन है वो प्रेजेंट है, तो श्योरली वो अफेक्ट होगा. एंड he marries a normal homozygous woman, means उसके किसी भी X chromosome पे जीन प्रेजेंट नहीं है, तो woman is normal. After marriage, the probability of the daughter having hemophilia will be 0% because the daughter will be carrier. क्योंकि एक X क्रोमोसोम आएगा उसका फादर से और एक X क्रोमोसोम आएगा उसका मदर से. मैंने अभी आपको बोला कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर किसी वुमेन में हीमोफीलिया को अपना कैरेक्टर शो करना है तो उसे दोनों के दोनों X क्रोमोसोम पे उसके जीन्स होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मदर का भी कैरियर होना ज़रूरी है. तो यहाँ पे मदर कैरियर नहीं है, मदर नॉर्मल है, बट फादर जो है वो अफेक्टेड है, तो डॉटर क्या होगी? वो सिंपली कैरियर होगी. मीन्स वो नेक्स्ट जनरेशन में हीमोफीलिया को ट्रांसफ़र कर सकती है. नाउ coming up to question number 7, mention any 4 reasons why Drosophila was chosen by Morgan for his experiments in genetics. Morgan was experimenting on Drosophila and the conclusion of his experiment was all about linkage. मॉर्गन ने ही लिंकेज को जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था. तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? सो द रीजंस आर दैट इट हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल. मीन्स इन अबाउट 2 वीक्स वो डेवलप करती है, मेच्योर होती है, मीटिंग करती है, एग्स ले करती है एंड देन डाई. It can be grown easily in laboratory or it can be reared easily in laboratory condition in cages.
एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन जस्ट वन मीटिंग। एक मीटिंग में ही वो काफ़ी सारे अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस कर जाती है। मेल एंड फीमेल शोज मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस, जिनको स्टडी करना जो है वो ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज differentiate between dominance, codominance and incomplete dominance. So it is very important question and you should know the difference between these three terms. Dominance is the state where one allele express itself and prevent the expression of the other. For example, if we take the characters that has taken by मैंडल ने क्या किया था, मैंडल ने एक टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस करवाया था। जस्ट टू रिप्रेजेंट इट हम क्या कर रहे हैं, टॉल पी प्लांट के जो जीन्स हैं उनको हम कैपिटल टी ले रहे हैं एंड ड्वार्फ पी प्लांट के जीन्स को हम लोग स्मॉल टी ले रहे हैं। इन F1 जनरेशन उसने क्या देखा था, दैट ऑल द प्लांट्स वर टॉल बट दैट इज द फिनोटाइप, मीन्स वो एक्सटर्नल कैरेक्टर था प्लांट का। लेकिन अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स हेट्रोजाइगस थे, है ना, एक जीन था टॉल का और एक जीन था ड्वार्फ का। बट दिस tall gene does tall allele does not let the dwarf allele to show itself. So this is dominance, where one allele expresses itself and prevent the expression of the other one. वो उसके ऊपर पूरी की पूरी तरह से dominant है। Co-dominance is the state if two dominant alleles, अगर दो dominant alleles एक साथ present रहेंगी and both express, और दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करती हैं, दिस इज कोडोमिनेंस। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप का, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का एंड यू नो दैट हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है इट इज़ ए बी एंड ओ टाइप। तो 4 तरह के जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स हैं वो it can be seen in human beings and it also comes under multiple alleles, क्योंकि कैरेक्टर क्या है ब्लड ग्रुप, लेकिन alleles क्या है, डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से वो जो उसके एक्सप्रेशन है वो भी डिफरेंट है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप के जीन्स और बी ब्लड ग्रुप के जीन या फिर अलील एक साथ किसी पर्सन में प्रेजेंट होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी एंड दिस इज कोडोमिनेंस, कि दोनों अलील्स जो हैं वो एक दूसरे को शो कर रही हैं। Talking about incomplete dominance, here two different alleles fail to express, means दो different alleles heterozygous condition में एक दूसरे को नहीं पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी and an intermediate character develops in the progeny. एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो प्रोजेनी में डेवलप हो जाता है, मीन्स बीच का एक कैरेक्टर जो कि ना तो मदर में था ना ही फादर में था, लेकिन प्रोजेनी में वो शो हुआ, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि हमने इसमें पहले भी बात करी थी स्नैपड्रैगन की। स्नैपड्रैगन में आप देख सकते हैं कि इफ रेड कलर्ड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद और अलाउड टू क्रॉस विद वाइट कलर्ड फ्लावर प्लांट, सो द प्रोजेनी विल हैव पिंक कलर्ड फ्लावर्स। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि ना तो व्हाइट कलर खुद को शो कर पा रहा है ना ही रेड, लेकिन उसके बीच का एक कलर पिंक कलर जो है वो प्रोजेनी में शो हो रहा है, एक डिफरेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। सो आई होप डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज a pedigree chart has been given to you and it shows a particular trait which is absent in the parent but found in the generation irrespective of the sexes. You have to analyze this pedigree chart and you have to draw a conclusion. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिजीज जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में तो शो हो रहा है लेकिन पेरेंट्स में वो इनविजिबल है, इट इज नॉट सीन इन द पेरेंट्स। सो कंक्लूजन क्या है इसका कि इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, why it is an autosomal recessive disorder? Because it cannot be seen in the parents but it can be seen in the offspring or children and irrespective of the sexes, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है जो कि सिर्फ मेल में ही है, फीमेल में नहीं है, या फीमेल में ही है, मेल में नहीं है। तो या तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो या तो कैरियर होंगे या फिर नॉन कैरियर होंगे, मीन्स या तो वो अफेक्टेड होंगे, कैरियर होंगे, नॉन कैरियर होंगे।
तो this is the conclusion that can be drawn from this pedigree analysis chart. Our last question is, which law of Mendel is universally accepted? कौन सा मेंडल का ऐसा लॉ? मेंडल हैज गिवन 3 लॉज, तो उन 3 लॉज में से कौन सा ऐसा लॉ है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? एंड द आंसर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. एंड व्हाट डज इट स्टेट? कि the 2 allele of each character segregate during gamete formation so that each gamete receives only 1 allele for each character and is always pure. Means हर एक कैरेक्टर के लिए जो 2 अलील्स होंगी, जब गैमेट बनेंगे वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेंगी, और हर एक गैमेट में एक एक अलील जाएगा हर एक कैरेक्टर के लिए. So guys, this is all about for today's video. I will come up with some more questions related to principle of inheritance. Thank you.